Good morning. I am Anil Agarwal, former Chief Manager, Punjab National Bank. So, some candidates, those are not in position to reach the destination due to non-availability of transport or otherwise, are requesting, sir, help us in launching a complaint at Twitter so that exams are postponed. Now, purpose of this channel is right advice at right time. Whatever advice I will give you, that is the advice that will help you in sorting out the matter. You can launch a campaign on Twitter, there is no harm in it. Some people are quoting that in SSC they have run a campaign and they have got the result. What was the result? Announcement of holding of exam, not postponement. Another thing was declaration of result. And both these things are happening in case of banking aspirant. Holding of exam is happening and SBI Junior Associate result is pending, that is likely to announce very soon. So the Twitter campaign for postponement will bring some result or not, it is doubtful. But still, if you feel that it will help you in pointing out your grievances, you can launch a campaign, there is no harm in it. So through this video, I can request all those people, those are aggrieved, they can launch a campaign. But what is the better option? Better option is we should lodge complaint with IBPS Grievances Center. If we lodge a complaint with IBPS, they will come to know the exact number of people those have suffered due to this. And they may think about giving some alternative. But if we run a campaign, the organization does not get the real data. But once you lodge the complaint with the concerned authority, they get the data that how many people are affected out of this. And when this number is large, they may look for some alternative. Alternative may be in form of holding an additional exam at some additional date, like it happens in case of natural calamities. Sometime all India exam happens, but for a particular place exam is held later on. So same situation may emerge here. They may hold the examination on scheduled dates and also arrange examination for candidates those are sufferer. It is a possibility, not certainty. So if you feel comfort in launching a Twitter campaign, you can launch. If you are comfortable in sending a complaint, send a complaint. If you are comfortable in both, do both the things. But if somebody is having over expectation that by merely placing a video on YouTube can get the exam stopped or can the exam postponed, I don't think YouTube is such a powerful tool. YouTube videos are only watched by its subscribers or viewers, and it has very limited role for the decision makers. We have to live in the era of reality. Certain YouTubers or certain people may be posing by posting their videos, this has changed, that has changed. It never happened. The things will move in the direction in which they want to move. The only purpose of videos is to understand what is in store and how we adjust ourselves according to the emerging situation. That is the only role of a good channel. A good channel can see the future, tell you what is going to happen so that you are psychologically prepared. And I am doing that work.
I was always used to say exams will happen. Certain people were not on the board. They were saying, no, sir, your videos, what you are saying will not happen. But this is happening now. So the purpose of a YouTube channel is to see what is going to happen, tell its viewer that this is the scenario, and make them psychologically prepared to face such eventualities. But if somebody feels that I will place a video and things will change, I doubt that capability. I am with everyone. I am with the people, those are appearing in examination. I am with the people, those are not so lucky and they have to miss the exam. But I will only give the right advice. The Twitter campaign does not bring any result. We have also tried many Twitter campaign on this channel. You can do. I am not discouraging you. But I am giving you an alternative. The alternative mechanism is lodge a complaint with IBPS. And if they get good number of complaints, naturally some rethinking will happen. And this rethinking can be additional dates for exam. But as far as postponement is concerned, I am doubtful. अब यही बातें हम हिंदी में करेंगे. अब काफ़ी हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो शायद सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे, अपनी मजबूरी भी बता रहे हैं और वो रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि सर एक कैंपेन चलाओ जिससे IBPS एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए. हमारा चैनल है राइट एडवाइस एट राइट टाइम. इसके अंदर मैं आपको वही बातें बताता हूं जो संभव है. आप एक कैंपेन चला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. इस वीडियो के थ्रू मैं, अगर आप चाहते हो तो मैं, जो लोग चाहते हैं कि ऐसा कैंपेन चले वो कैंपेन चला सकते हैं. पर मेरा मानना क्या है? मेरा मानना ये है कि बेटर ऑप्शन है कि आप IBPS के रीड्रेसल के ऊपर कंप्लेंट लॉन्च करें. क्योंकि IBPS को यदि कंप्लेंट्स मिलती है तो वो उन कंप्लेंट्स के बेसिस पे कोई डिसीजन ले सकते हैं कि क्या एडिशनल डेट्स पे एग्ज़ाम करना है इन कैंडिडेट्स के लिए. क्योंकि जो कंपेन्स होते हैं उससे उनको कोई हार्ड डेटा नहीं मिलता है. कुछ लोग कह रहे हैं सर SSC में कंपेन चला, उसमें चला, सक्सेसफुल हो गया. वो आप समझिए उसमें और इसमें क्या अंतर है. रेलवे का कंपेन था एग्ज़ाम कराइए, डेट अनाउंस करिए, उन्होंने अनाउंस कर दी. SSC का कंपेन था रिजल्ट निकालिए, उन्होंने रिजल्ट निकालने की डेट अनाउंस कर दी. ये दोनों कंपेन, जो आपका कंपेन है उससे कहीं भी मेल नहीं खाता है. आप कह रहे हो कि एग्ज़ाम पोस्टपोन कीजिए और वो कंपेन था एग्ज़ाम कराइए या रिजल्ट अनाउंस करिए. अब जहाँ तक SBI जूनियर एसोसिएट का सवाल है, सिर्फ वही रिजल्ट बैंकिंग एस्पिरेंट्स का पेंडिंग है. और ऐसा लगता है कि अब अगर ये एग्ज़ाम करवा रही है IBPS तो SBI जूनियर एसोसिएट का रिजल्ट भी आ ही जाएगा, चाहे आप कंपेन उसमें चलाएं या ना चलाएं. हमने 3 कंपेन ट्विटर के ऊपर इसके अंदर रिक्वेस्ट की थी, चलाया भी, पर उसके बाद रिजल्ट तो नहीं आया. दैट मीन्स वो वेट कर रहे हैं कि कब ऐसा माहौल बने कि एग्ज़ाम हो सकता है, उसके बाद रिजल्ट निकालें. तो वो रिजल्ट आपका अब आने वाला ही होना चाहिए. अगर ये इस सैटरडे से एग्ज़ाम शुरू हो ही रहे हैं तो SBI भी करा सकता है अब तो एग्ज़ाम, उसमें तो वैसे ही कम बैठने हैं कैंडिडेट. तो मेरी सलाह ये है कि इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर आप हमारी मदद कीजिए, एक वीडियो डाल दीजिए, उसमें अपील करिए. मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूँ, कोई भी YouTube चैनल इतना कैपेबल नहीं है कि उसके वीडियो डालने से कोई एग्ज़ाम हो जाए या कोई एग्ज़ाम मुलतवी हो जाए. सिर्फ YouTube चैनल क्या कर सकते हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है उसके बारे में आपको बता के आपको चेता सकते हैं, आपको तैयार कर सकते हैं कि आप उसके लिए क्या तैयारी करें. जैसे मैंने अपने वीडियोस में बार बार आपको चेताया कि एग्ज़ाम होंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, ये हमारा रोल है. कुछ लोग ये बताते रहे एग्ज़ाम नहीं होंगे, 2020 में कोई एग्ज़ाम नहीं होंगे. उन्होंने अपना रोल अदा नहीं किया, वो अपने विचारों को बताते रहे पर सच्चाई को छुपाते रहे. अब आपके सामने एग्ज़ाम हो रहा है, तो अगर बताते रहते कि हाँ एग्ज़ाम हो सकते हैं तो शायद आप साइकोलॉजिकली ज़्यादा तैयार होते इसके लिए. अब क्या करना है? अब हमारे पास जो विषय है वो ये है कि क्या हमारे एक YouTube वीडियो डालने से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा? मेरा ख्याल
इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो जो आपकी YouTube की वीडियो है वो लोग देखते हैं, सिर्फ इसके सब्सक्राइबर और व्यूअर्स देखते हैं, और IBPS ने वो करना है जो उसको सही लग रहा है। पर इन परिस्थिति में हम अपने का आपका बचाव कैसे कर सकते हैं, ये सोचने की विषय वस्तु है। अब उसने डेट दे दी है, मैं सेंटर तक नहीं पहुंच सकता हूं, मेरे पास क्या ऑप्शंस है? पहला ऑप्शन है किसी भी तरीके से अगर मैं सेंटर पहुंच सकता हूं तो मैं पहुंचूं, नहीं पहुंच सकता तो मुझे IBPS में कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि मैंने उनका फॉर्म भरा है, मैं सेंटर नहीं पहुंच पा रहा हूं। मुझे उनको बताना चाहिए कि सर इस वजह से मैं सेंटर नहीं पहुंच पा रहा हूं, मुझे एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाए। और कई बार जब बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट वहाँ पहुंच जाते हैं तो हो सकता है उस पर विचार करके एक एडिशनल डेट आ जाए जिसके ऊपर ये एग्ज़ाम हो जाए। पर अगर कुछ लोग ये चाहें कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए और वो निश्चित कर चुके हैं कि एग्ज़ाम करना है और काफ़ी लोग एग्ज़ाम देने को आतुर भी हों, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। कई चीज़ें कड़वी होती हैं, सच होती हैं, उनका हमें सामना करना पड़ता है। कुछ लोग इमोशनल होके बातें करने लगते हैं कि आप सर ऐसे करो, आप ऐसे करो। वो ठीक है, आपका भावना बिल्कुल सही है, मैं आपके साथ हूँ, पर हमें अपना दिमाग भी उसमें लगाना पड़ेगा कि क्या ऐसा करने से कोई रिजल्ट आ रहा है। मैंने देखो शुरू में हर वीडियो के अंदर कोशिश यही की है कि आपको सही राह दिखाऊं। मैं कह सकता हूं एक ट्विटर कैंपेन चला लो, आप चला लीजिए, पर क्या उससे एग्ज़ाम रुक सकता है? आप खुद ही निष्कर्ष निकालिए। पर यदि आप IBPS को रिक्वेस्ट करते हैं कि सर मेरा भी एग्ज़ाम लो, और उनको एक अच्छी संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट मिलती है, तो शायद कोई रास्ता निकल सकता है। तो मैं तो आपको वो चीज़ सुझा रहा हूँ जिससे शायद आपको फ़ायदा हो जाए, क्योंकि अभी तो एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। अगर आप सेंटर पे नहीं पहुंच पाते हैं तो आपका मौका चूक चुका है। उसको फिर भी एक मौके में कन्वर्ट हो, वो क्या करना चाहिए, हमें वो सोचना चाहिए। मेरी वजह से वो सारी सिस्टम को बदल डालेंगे या पोस्टपोन कर देंगे या एक वीडियो को डालने से ऐसा हो जाएगा, आप खुद ही समझदार हैं क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं कर सकता। ये झूठी तसल्ली है। अगर कोई चाहे कि भाई अग्रवाल जी एक वीडियो डाल दें, एक झूठी तसल्ली दे दें, मेरा ख्याल वो मेरे लिए सही नहीं होगा। सच बताना, सच का सामना करना, एक सही राह दिखाना, ये उद्देश्य है इस चैनल का। राइट एडवाइस एट राइट टाइम। इन सर्कमस्टांसेस में मैं आपको क्या कर सकते हो वो सुझा रहा हूँ, और अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद कुछ नहीं होगा तो जो आने वाले एग्ज़ाम पे यदि आप फोकस करेंगे और उसमें मेहनत करेंगे वो आपके काम आएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।